شروع کرتا ہوں یشوع ہامشیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام اسٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری میں خدمت کرنے والے بھائیوں بہنوں کو سلام، شالوم، جے مسیح کی۔ میرے دوستو، آج جو ہم بات کریں گے اور جو سٹڈی ہے ہماری وہ ہے عید فصح سے 6 دن پہلے کا واقعہ۔ عید فصح سے 6 دن پہلے یسوع مسیح، یسوع ناصری لازر کے گھر کھانا کھانے گئے تھے اپنے شاگردوں کے ساتھ۔ یوحنا کی انجیل اس کا 12واں باب پہلی آیت سے 11ویں آیت تک آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اور وہ دن جمعے کا تھا، 9 تاریخ نسان کی تھی، اور چاند کی بھی نامی تاریخ تھی، اور اپریل کا مہینہ اور اس کی 7 تاریخ تھی جو انگلش کیلنڈر کے مطابق ہے۔ اور 5783 سال ہو چکے ہیں یہ دنیا بنی ہوئی کو، اور آپ اس کو گوگل پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 2023 کے کیلنڈر کے مطابق 5783 سال ہو چکے ہیں یہودی کیلنڈر کے مطابق، کیونکہ یہودی کیلنڈر جو ہے، یہودیوں کا دن جو ہے، خدا کا جو دن ہے، وہ پہلے رات ہوتی ہے۔ پیدائش کی کتاب پہلا باب آپ پڑھ لیں تو آپ کو وہاں پر پتہ چل جائے گا۔ شام ہوئی، صبح ہوئی تو پہلا دن ہوا، پھر لکھا ہے شام ہوئی، صبح ہوئی تو دوسرا دن ہوا، شام ہوئی، صبح ہوئی سو تیسرا دن ہوا۔ تو بائبل کا اور خدا کا جو طریقہ اور کیلنڈر اور یہودیوں کی بیس اسی پہ ہے، پہلے شام اور پھر صبح۔ دنیا کا، دنیا کے مذاہب کا، دنیا کے طریقہ کار کا جو انٹرنیشنل کیلنڈر چل رہا ہے، جسے انگلش کیلنڈر کہتے ہیں، وہ صبح سے شروع ہوتا ہے، لیکن خدا کا شام سے صبح ہوتی ہے۔ آج بھی انسان کی زندگی میں بھی ایسے ہی ہے، جب تاریکی ہے تو خدا پھر اس کی زندگی میں صبح لے آتا ہے، دن چڑھ جاتا ہے۔ کبھی سدھرا ہوا شخص بگڑ سکتا ہے، لیکن خدا بگڑے ہوئے کو سدھارتا ہے۔ اب اس کو آپ غور سے اس کی سٹڈی کریں، یہ جو یوحنا 12واں باب ہے اس کی پہلی آیت سے 11ویں آیت تک، تو جیسے میں نے بتایا کہ یہ عید فصح سے 6 دن پہلے کا واقعہ ہے، اور مریم کے گھر، یعنی کہ مریم اور لازر اور مارتھا کے گھر یسوع مسیح وزٹ کے لیے گئے، اور وہاں پر مریم نے، جو لازر کی بہن ہے، اس نے جٹا ماسی کا تیل لیا اور یسوع کے پاؤں پر ڈال دیا۔ یہ اس نے بھیٹ چڑھائی، یہ اس نے قربانی دی، کیونکہ آدھا سیر جٹا ماسی کا تیل یہ ایک طرح سے جہیز تھا لڑکی کا۔ یہ یہودیوں کی روایت ہے، جو گھر بناتا ہے وہ شوہر ہے، جو سامان رکھتا ہے گھر میں، فریج، ٹی وی، VCR، جو کچھ بھی ہے، جو کھانے پینے کی چیزیں، جو کچھ بھی ہے، وہ لڑکا کرتا ہے۔ اسی لیے جب ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کہا میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، تو وہ جگہ تیار کرتا ہے، اور پھر وہی دولہا اپنی دلہن کو، اپنی مگیتر کو، اپنی پیاری کو وہ گفٹ بھیجتا ہے، اور وہ کیا کرتی ہے؟ وہ اپنے آپ کو تیار رکھتی ہے، صاف ستھرا رکھتی ہے، اس کی وفاداری میں رہتی ہے۔ یہ نہیں کہ دولہا گیا ہوا ہے اس کے لیے تیاری کرنے، اور اس نے فیس بک پہ اور واٹس ایپ پہ اور زوم پہ اور آن لائن پہ 70-100 اور بڑے سارے دوست بنائے ہوئے ہیں، اور وہ اس سے بھی مرود لے کے کھا رہی ہے اور اس سے بھی مرود لے کے کھا رہی ہے۔ یہ نہیں، وہ دولہن صرف اس کے انتظار میں بیٹھی ہے، اور وہ جو اس سے کے انتظار میں بیٹھی ہے، دولہا پھر اس کو متان دیتا ہے، یہ ہیبرو ورڈ ہے متان، جو اس کو خاص گفٹ دیا جاتا ہے۔ اور وہ لڑکی پھر کیا کرتی ہے یہودیوں میں اور اس ٹائم کے ثقافت و تمدن میں، کہ وہ
अपनी कमाई से, अपनी वफादारी से, अपनी मोहब्बत से, अपनी मेहनत से जो उसने किया है, वो माँ बाप की तरफ से जो मिला है, जो दूल्हे की तरफ से मिला है, वो उससे अपना इत्र इकट्ठा करती है, वो खास तेल इकट्ठा करती है जो बड़ा कमाल खुशबू का कीमती तरीन, जिसके बारे में उसी जगह पर यहूदा अस्करियोती क्या कह रहा है, कहता है ये तो 300 दिनार में बिक सकता था। अब 300 दिनार को आप देख लें कि आजकल दिनार का क्या रेट है, 70, 75 का, 74 का दिनार है। आप इसको ज़रब दे लें, आपको पता चल जाएगा कि अगर वो 75 का है तो आप उसको देख सकते हैं कि वो कितने कितने पैसे बन जाते हैं। ये कुछ तकरीबन 2.25 लाख का है। और आजकल बड़ा ये 2.25 लाख का, तो उसने वो ना सिर्फ परफ्यूम, ना सिर्फ वो तेल मसीह के पांव पर डाल दिया, बल्कि वो जार, वो बर्तन, वो इतरदान उसने तोड़ दिया कि मेरा तू ही है दूल्हा, तू ही मेरा सब कुछ है। क्यों? इसलिए कि लाजर उसने जिंदा किया। मैं पहले भी बता चुका हूं, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं जो इस्राएल का टूर है। मैं उनके घर भी गया हूं, मैं उनके जो कोहलू की जगह है जहां पर लाजर का बिजनेस था वहां पर भी गया हूं, और जहां पर मसीह खुदावंद अपने शिगिर्दों के साथ गए और उनके घर से दूर ही जहां पर उनके आंसू निकले, जहां पर मरियम और मार्था उनको मिलने गई, वो जगह पर भी हूं। और उस जगह पर आज भी वो पत्थर है जहां पर मसीह खुदावंद बैठे हुए थे, और मरियम को पता चल गया, मार्था को पता चल गया कि उस्ताद आ रहा है, तो वो घर से भागकर वहां पर गई, रस्ते में ही उसके इस्तकबाल के लिए, और वहां पर ही रोई, वहां पर ही उनकी बातें हुई, वहां पर ही मसीह रोया, और वहां पर ही मसीह ने कहा कि तू ईमान रख, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, फिक्र ना करो। जब वो उनका भाई अकेला ही भाई था, उनका कोई और नहीं था, मां भी नहीं थी, बाप भी नहीं थे, तो वो पेरेंट्स थे ही नहीं, तो वही उनका सब कुछ था, उनका पालने वाला, उनकी प्रोटेक्शन करने वाला, उनका खिलाने वाला, संभालने वाला, सब कुछ वही था। और जब यीशु ने उस लाजर को जिंदा कर दिया तो मरियम ने अपना सब कुछ यीशु के पांव में डाल दिया। और यहूदा अस्करियोती यहां पर कितना ग्रीडी लग रहा है, लालची लग रहा है, लेकिन यहां पर उसका जो लालच था वो, अगर आप हिस्ट्री पढ़ें, आप इसके हिस्ट्री में चले जाएं, आपको पता चलेगा कि एक डाकू जो यीशु का सलीब पर इकरार कर रहा है, वो एक कहन का बेटा था, वो भी यीशु को जानता था, और उस कहन की बेटी यहूदा अस्करियोती के साथ मंगी हुई थी, मंगेतर थी, उसके लव में थी, उसका अरेंज हो चुका था। तो वो अब वो रूमी हुकूमत ने उस लड़के को पकड़ा था, और वो चाहते थे कि उसका जो जुर्माना है वो पे किया जाए, वरना उसको मार दिया जाएगा, उसकी जमानत दी जाए। अब उस लड़की ने यहूदा अस्करियोती को कहा कि तू इस तरह कर के पैसे का इंतजाम कर ताकि मेरा भाई बच जाए। अब यहूदा अस्करियोती के सामने वो तेल यीशु मसीह के पांव पर गिराया गया, और अब वो क्या कह रहा है कि ये गरीबों को दिया जाता, यानी कि जो मर रहे थे, जिनको अभी रोमियों ने पकड़ा हुआ है, जिनको सलीब दिया जाएगा, जो कैद खाने में है, ये उनके लिए दिया जा सकता था। अब यहूदा को ये नहीं फिक्र कि मसीह भी सलीब दिए जाने वाला है, और यहूदा को ये फिक्र नहीं है कि वो उसकी जान बचा रहा, वो चाहता मेरे हाथ में आ जाए और मेरी बड़ाई हो और मेरी वाह वाह हो जाए, और मैं अपनी मंगेतर को या अपनी बिलव्ड को, अपनी महबूबा को दिखा सकूं कि देख मैं तुझे कितना प्यार करता, देख आज मैं पैसे ले आऊं। आखिरकार वो तो मिले नहीं पैसे, वो तो यीशु ने जवाब दे दिया कि गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे पास है, मैं तो नहीं रहूंगा। तो यहूदा अस्करियोती ने कहा अच्छा ये पैसे नहीं है
तो उसने अपने उस्ताद का ही सौदा कर दिया, ताकि किसी ना किसी तरह से वो पैसे कलेक्ट कर ले। फकीयों से ले ले, फरीसियों से ले ले, सदूकियों से ले ले, कहनों से ले ले, रूमियों से ले ले, किसी से भी ले ले, उसे पैसे चाहिए ताकि उसकी मंगेतर खुश हो जाए और मैं उसके भाई को रिहा करवा सकूं और वो रूमियों के जुल्म से बच जाए। लेकिन उसको ये नहीं पता कि इसके साथ क्या होगा, क्योंकि यहूदा के अंदर भी एक गलत फहमी थी। वो समझता था कि मेरा उस्ताद यस्सु नासरी ऐसी पावर वाला है, ये तो गैब भी हो जाता है, क्योंकि उसको पता था उस किस्से का, जब लोग उसको पहाड़ी के ऊपर से धक्का दे के मार देना चाहते थे तो लिखा है यीशु मसीह वहां पर गैब हो गया। फिर कई जगहों पर ऐसा हुआ, वो पानी पर भी चला, तूफान को भी थमा दिया, मछलियां भी उसका कहना मानती हैं, अंधों की भी आंखें खुलती हैं, लाजर को भी उसने जिंदा किया हुआ है। उसके अंदर यह भी था कि अगर कोई ऐसा काम हो भी गया तो इसको तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब यहूदा को यह पता चल गया कि ये तो सारे का सारा जितना अमल मैं कर रहा हूं ये मेरी सोच है, कादर मुतलिक का, रब्बुल अफवाज का, हय्युल कय्यूम का, अल्फा ओमेगा का, अव्वल आखिर का, तो कुछ प्रोग्राम ही और है। तो यहूदा की ये प्लानिंग थी। और देखिए आगे कि फिर वो निकला है और सरदार कहनों के साथ मशवरा कर रहा है, और उधर सरदार कहन जो है वो मशवरा कर रहे हैं कि किस तरह से किसी ना किसी तरह से लाजर को मार दें, क्योंकि यीशु को वो लोग इतना पसंद करते हैं, इतने उसके गर्विदा हैं, इतने उसके फॉलोअर हैं, इतने उसके पीछे चलने वाले हो गए हैं कि उसके मौजज़ों की वजह से सारा यरूशलेम, बल्कि इसराइल और बल्कि जितने लोग दूसरे ममालिक से भी ईद मनाने के लिए आए हैं वो सब इश्तियाक रखते हैं, मुश्ताक हैं कि वो यीशु को देखें। फकी, फरीसी, सदूकी, शरा के आलम, रूमी सब बिजी हैं कि इस मुद्दे को खत्म किया जाए, यीशु को खत्म किया जाए, यीशु नासरी को खत्म कर दिया जाए। लेकिन डरते थे कि ईद पर इतने लोग इकट्ठे हैं और इतने लोग इसके दीवाने हैं, इतने जनूनी हैं, इतना प्यार करते हैं, तो अगर हमने इसको पकड़ लिया तो बड़ा बलवा हो जाएगा, बड़ी कत्लो गारत हो जाएगी। इस वजह से वो अब मौका ढूंढ रहे थे कि कोई ना कोई मौका मिल जाए कि हम यीशु को पकड़ें। ये प्लानिंग ईद फसा से 6 दिन पहले शुरू हो गई। लाजर के घर से ये प्लानिंग शुरू हुई। ये यहूदा अस्करियोती उनका सहूलतकार बन गया। उसने उनके लिए रास्ते बनाए कि मुझे पैसे दे दो। अगर उस दिन यीशु कह देता कि हाँ ये तेल जो है ये आइंदा से जो भी होगा वो तू रखना, तो वो बड़ा खुश होता। लेकिन यीशु मसीह ने कह दिया कि ये मेरी मौत की तैयारी है। यहूदा के सारे चालें, सारे अमल यीशु जानता था। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, आप इसको लिख लें अच्छी तरह से और तहकीक किया करें, तफ्तीश किया करें। और जो लोग आपके जुमे में हैं, जो आपकी भेड़ें हैं, जो आपके गल्ला के लोग हैं, जो आपकी कलीसिया के लोग हैं, जो आपके हक में हैं, जो आप इन फ्यूचर जो आपका जलाल है, जैसे पालूस कहता है कि तुम मेरा जलाल हो, जो आपकी कलीसिया है वो आपका जलाल है, यही लोग आपके साथ जाएंगे। अगर आप इनको सही खुराक दोगे, मेहनत करके प्योर दिखाओगे, तो फिर बरकत पाएंगे, आप खुशी पाएंगे। ज्यादा वक्त गीतों पर नहीं, ज्यादा वक्त दुआ पर लगाएं,
ज़्यादा वक्त कलाम की स्टडी पर लगाएं, ज़्यादा वक्त मसीह के कलाम की तहकीक व तफ्तीश करें, उसको पेशन गोइयों के साथ मिलाएं, उनको नबियों के सहाइफ के साथ मिलाएं, उनको खुदा की प्लानिंग के साथ मिलाएं, उनको मूसा की शबाहत के साथ मिलाएं, ताकि लोगों के अंदर ईमान बढ़े, लोगों के अंदर खुशी कायम हो। ज्यादा ढोलक बजाने वाले, गीत गाने वाले, शोर शराबा करने वाले, तो आपको पता है कोहे करमल की चोटी पर कौन थे और उनके हाथ में क्या आया, उनको हासिल क्या हुआ? एलिया ने उनको मार दिया। 450 नबी थे झूठे। आप झूठी प्रैक्टिस ना करें। शरीर को मेरे आइन बयान करने से क्या वास्ता? ये जितने परस्तार हैं इनसे जरा देखिए कि क्या ये परस्तार हैं या गायक हैं, गवैये हैं। खुदा कहता है मुझे जो कमाल सरोदी हैं, मुझे इनकी आवाज से नफरत है। इनके गले में आकला की बीमारी है। आकला कहते हैं कैंसर। इनके गले में कैंसर है, और कैंसर कहा जाता है गुनाह को। जिनके अंदर गुनाह है वो खुदा की तारीफ करते हैं, तो खुदा कहता है मुझे नफरत है इनकी आवाज से भी। इसलिए ये तो आजकल ये तो बिजनेस बना हुआ है। हर लंडी बुच्ची, हर नौजवान लड़का, हर नौजवान लड़की बनी हुई है कि जी हम परस्तार हैं। लेकिन कुछ हैं जो बुलाहट पे हैं, कुछ हैं जो खुदा के मसा के नीचे हैं, जो दुआ में वक्त गुजारते हैं, जिनकी जिंदगियां दाऊद की तरह सिर्फ खुदा की तारीफ के लिए हैं। ये नहीं कि जैसा देश वैसा भेष। जब पुलपट पे हैं तो बस बड़े खुदा के गीत गा रहे हैं, और जब पुलपट से उतर गए तो फिर मज़ारों पे गा रहे हैं, फिर मज़ारों की तारीफ गा रहे हैं। हाँ, गजल गाना बुरी बात नहीं, क्योंकि औरत की तारीफ गा रहे हैं, तो खुदा औरत की तारीफ करना, अपनी बीवी की, अपनी बहन की, अपनी मां की तारीफ करना बुरी बात नहीं। गजलो गजलात भरी पड़ी है। खुदा को जो बुरा लगता है वो है जो जाके कभी कब्रों पे किसी का जगराता कर रहे हैं, कभी किसी की कवालियां गा रहे हैं, कभी किसी के मज़ारों पे गा रहे हैं, और वही मुंह फिर वो खुदा की तारीफ कर रहा है। वो तो सिर्फ एक टेप रिकॉर्ड की तरह है, वो तो एक सीडी की तरह है, सीडी प्लेयर की तरह है। जो भी लगा दो वो गाएगा। वो तो एक बर्तन है, उस गिलास में शराब डाल लो, उसमें जहर डाल लो, उसमें पानी डाल लो, उसमें पेशाब डाल लो, कुछ भी डालो, बस वो तो उसमें आ जाएगा। आप अपने आप को देखें कि आप खुदा के मखसूस बर्तन हैं या बाजारू गिलास हैं जिसमें कुछ भी डाल लो बस डाला जाएगा। हैकल के खास बर्तन थे, अशायरबानी के खास बर्तन होते हैं, तारीफ करने वाले, खुदा की सताइश करने वाले खास लोग हैं, खास उनके गले हैं, उनका दिल है, उनकी सोचें हैं। और जब ऐसी सताइश होती है तो फिर आसमान से अबर छा जाता है, फिर खुदा की हजूरी छा जाती है, फिर जिंदगियां बदलती हैं, और फिर मुर्दे जिंदा होते हैं। जैसे लाजर जिंदा हो गया, मरियम को कहा है मरियम तूने अच्छा हिस्सा चुन लिया। जो अच्छा हिस्सा चुन लेता है वो भी फिर अपना अच्छा हिस्सा ही यीशु के सामने देता है। मरियम ने अपनी जिंदगी का सारी जमा पूंजी यीशु के पांव में डाल दी। लोग कहते हैं वो गरीब लाजर को और इस लाजर के साथ मरियम के भाई के साथ मिला देते, हालांकि ये अमीर आदमी था, इनके अपने कोलू थे, इनके गंदम पीसने वाली, आटा बनाने वाली मशीनें हैं, आज भी हैं वहां पर। वहां ऑर्थोडॉक्स ने बड़ा चर्च बनाया है, वहां कैथोलिक का भी एक चर्च है। आप इस बात की सच्चाई देखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो पे चले जाएं, आपको वहां की सैर हो जाएगी, आप देखेंगे। इसलिए तहकीक किया करें, सिर्फ यही नहीं कि ये यहूदियों की तालीम देते हैं। स्टडी करने के लिए लोग अपने अपने मुल्कों से, शहरों से, गांवों से फॉरेन में जाते हैं, अमेरिका, कनाडा, यूरोप में, ताकि हम और ज्यादा सीखें। और अगर
कुएं की मेंढक बन के वहीं पे रहना है, उन्हीं छपड़ियों में रहना है, उन्हीं नालियों में रहना है और सीखना नहीं कुछ, बल्कि जो सीखता है उसको कहना कि नहीं नहीं ये यहूदियों की तालीम देते हैं इसलिए आप इनको चर्च में ना लेके आए। आप अंदाजा करें आपकी हमाकत किस हद तक पहुंच चुकी है और आप कितने दूर जा रहे हैं सच्चाई से और रोशनी से। खुदावंद आपको इस कलाम के समझने की तौफीक